السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگ کے درمیان امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پینٹاگون چیف پیٹ ہیگس نے کہا کہ امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جنگ بندی پر مجبور کیا گیا۔ ہیگس کے مطابق امریکہ نے اس پورے آپریشن میں اپنی فوجی طاقت کا 10% سے بھی کم استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود ایران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منگل کی رات امریکہ نے 800 سے زائد فضائی حملے کیے، جس سے ایران کا فوجی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ہیگس نے کہا کہ ایران کی بہت سی فیکٹریوں کو زمین بوس کر دیا گیا اور اس کا میزائل پروگرام اب مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر شدید زخمی ہیں۔ دوسری طرف امریکی فوجی اہلکار کین نے بیان دیا کہ اس کارروائی میں ایران کا 80% فضائی دفاعی نظام تباہ ہو گیا۔ مزید امریکہ نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ 90% اسلحہ ساز فیکٹریاں بھی تباہ ہو گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے بعد ایران کو اپنی فوجی طاقت، خاص طور پر اس کی بحری صلاحیتوں کو دوبارہ بنانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک نئی سفارتی کوششوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات 10 اپریل بروز جمعہ اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔ ایک طرف امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کو جنگ بندی پر مجبور کیا اور اسے شکست ہوئی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ جھک چکا ہے اور ایران اسے اپنی جیت کہہ رہا ہے۔ امریکہ اور ایران 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، جبکہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات جمعے کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔ جنگ بندی کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی رات کیا۔ معاہدے کے تحت ایران اپنا ہارمز کو دوبارہ کھول دے گا، جو کہ ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ چین نے اس جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی روکنے کے لیے معاہدے کی ترغیب دینے میں اپنے کردار پر زور دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے آج چہارشنبے کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا چین متعلقہ فریقوں کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ وانگ ای نے متعلقہ ممالک کے ہم منصبوں کے ساتھ 26 ٹیلی فونک رابطے کیے، جبکہ بیجنگ کے مشرق سطح کے مندوب نے جنگ زدہ خطے کے متعدد دورے کیے۔ چین صورتحال کو بہتر بنانے اور جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کے خلاف یک طرفہ جارحانہ اور بلا اشتعال حملے کی حکمت عملی کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے سپوٹنک ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جارحانہ بیانات اور سوشل میڈیا پر فتح کے دعووں پر مبنی تمام پوزیشنز ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس شروع ہی سے ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے اور حقیقی سیاسی و سفارتی تصفیات شروع کرنے پر زور دیتا رہا۔ سابق روسی صدر دمیتری میدویدیف نے کہا ہے کہ جنگ بندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقل و دانش غالب آ گئی، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں تیل سستا نہیں ملے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی شرائط پر عمل کریں تاکہ خطے میں پائیدار اور جامع امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے سویلین جانوں کے تحفظ کے لیے دشمنی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس جنگ بندی میں سہولت کاری فراہم کی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان ڈیر لیئن نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کشیدگی میں کمی کے لیے اہم قرار دیا۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونی کوسٹا اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالس نے بھی اسے ہفتوں کی کشیدگی کے بعد ایک مثبت قدم قرار دیا۔ ہسپانوی حکومت ان لوگوں کے لیے تالیاں نہیں بجائے گی جو پہلے دنیا کو آگ لگاتے ہیں اور پھر ہاتھ میں بالٹی لے کر آ جاتے ہیں۔ اسپینی وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے کہا کہ اگرچہ جنگ بندی خوش آئند ہے، لیکن ہمیں اس تباہی اور جانی نقصان کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس دوران ہوا ہے۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس تنازع نے لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار کیا اور عالمی توانائی کی سپلائی اور تجارتی نیٹ ورکس کو درہم برہم کر دیا۔ بھارت کو توقع ہے کہ اب آبنہ ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی اور عالمی تجارت کا بہاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے بحال ہو جائے گا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ایرانیوں کا ہجوم اس وقت جمع ہوا جب امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ڈیڈ لائن سے محض 1 گھنٹہ پہلے ہوا، جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے آبنہ ہرمز کو نہ کھولا تو وہ ایران کی پوری تہذیب کو تباہ کر دیں گے۔ یہ جنگ بندی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مہم کے 38 دن بعد عمل میں آئی۔ 1 ماہ سے زائد جاری رہی اس تنازع کے خاتمے پر تہران اور واشنگٹن دونوں نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے شہر تہران کے مختلف حصوں میں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے جنہوں نے ایران کے قومی پرچم لہرائے اور نعرے بازی کی۔ اس دوران کچھ لوگوں کو اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے جلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔
ईरान के सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान की जंग बंदी की तजवीज कबूल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि इस तजवीज और जंग बंदी में चीन ने असल किरदार अदा किया, जिसका पाकिस्तान को हीरो करार दिया जा रहा है। ये चीन ही था जिसने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए दबाव डाला। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अलावा चीन ने भी ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग में 2 हफ्तों की जंग बंदी के फैसले में अहम किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों के साथ साथ चीन ने ईरान को घायल करने और कशीदगी को कम करने के लिए आखिरी लम्हात में मदाखलत की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वाज़ेह तौर पर ईरान को खबरदार किया कि अगर ट्रंप ने धमकी के तौर पर ईरान की तोनाई के मुकामात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पूरी आलमी मईशत तबाह हो जाएगी। चीन तेल की आसमान छूती कीमतों और आलमी सप्लाई चेन में खलल के बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद था। बीजिंग ने ईरान से कहा है कि एक तवील जंग दोनों तरफ से भारी नुकसान का बायस बनेगी और ईरान के लिए देरपा फायदे हासिल नहीं करेगी। ईरान के हुक्काम ने इतला दी है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने जाती तौर पर जंगबंदी की मंजूरी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के किरदार का एतराफ किया। अगरचे इस मामले में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई है। चीन ने बुनियादी तौर पर 3 तरीकों से ईरान को घायल किया। अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला किया तो ईरान की मईशत मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगी। चीन ने कहा कि इसकी अपनी तेल की दरामदात और तिजारत शदीद मुतासिर होगी। चीन ने ईरान से कहा कि वो तनहा नहीं लड़ सकता। चीन ने ईरान को यकीन दिलाया कि वो जंगबंदी के बाद ईरान की तामीर नौ में मदद करेगा और पाबंदियां हटाने में मदद करेगा। इस जंगबंदी के तहत आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाएगा और ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर बहरी जहाजों से टोल वसूल करेंगे। 40 दिन की जंग को रोकना आसान नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तबाही की धमकियां दे रहे थे, लेकिन पसपर्दा सिफारती सरगर्मियां उरूज पर थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इन आखिरी घंटों में अमेरिकी फौज और पेंटागन के एहलकार ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तैयारी कर रहे थे। हालात ऐसे थे कि सबने हुक्म पर अमल किया, लेकिन इसके नतायज किसी को मालूम ना थे। खलेजी ममालिक के गैर मामूली ईरानी जवाबी हमले के लिए तैयार थे। ईरान के अंदर कुछ शहरी हमलों से बचने के लिए अपने घरों से भाग रहे थे। ईस्टर के अगले दिन पूरा व्हाइट हाउस फोन कॉल से गूंज रहा था। ईरान की 10 निकाती तजवीज आ चुकी थी, जिसे अमेरिकी एलची स्टोवेट को तबाही करार दे रहे थे। पाकिस्तानी सालिस अमेरिकी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान नए मसूदे पास कर रहे थे। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा भी इस खलीज को पूर करने की कोशिश कर रहे थे। रात देर गए तक सालिसों ने 2 हफ्तों की जंगबंदी के लिए एक ताज़ा तरीन तजवीज़ तैयार कर ली थी और अमेरिका ने इसे मंजूर कर लिया। अब गेंद मुश्तबा खामेनेई के कोर्ट में थी। ज़राए ने बताया कि खामेनेई ने मंगल को इस अमल में सरगर्मी में से हिस्सा लिया। अगरचे इनके जवाबात मुख्तसर थे, लेकिन वो आ रहे थे। नए सुप्रीम लीडर को इजराइल से कत्ल का खतरा था, इसलिए उन्होंने बुनियादी तौर पर सफीरों के जरिए भेजे गए पर्चियों के जरिए बात की। 2 ज़राए ने खामेनेई की मंजूरी को अहम तरीन इकदाम करार दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने न सिर्फ मुज़ाकरात को संभाला, बल्कि पासदाना ने इनकलाब के कमांडरों को भी कायल किया। दरअसल चीन ने कारगर किरदार अदा किया, ईरान को ऑफ रैंप लेने का मशवरा दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ट्रंप की टीम के साथ मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन इजराइल को लगा ये अमल इसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दोपहर तक दोनों फरीकों के 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुत्तफिक नजर आए। इजराइल के अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने आज 4 शुबे के रोज अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी की हिमायत करने पर नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इस हिमायत को सियासी व हिकमत अमली में नाकामी करार दिया। लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि हमने अपनी तारीख में इससे बड़ी सियासी तबाही कभी नहीं देखी। जब हमारी कौमी सलामती के बुनियादी मामलात से मुतालिक फैसले किए जा रहे थे तो इजराइल वहां मौजूद ही नहीं था। लैपिड ने मजीद कहा है कि नेतन्याहू के तकब्बुर, गफलत और कमजोर हिकमत अमली मनसूबाबंदी के बाद जो नुकसान हुआ है, इसकी तलाफी में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि फौज और अवाम ने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन हुकूमत अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। लैपिड ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि फौज ने वो सब कुछ किया जो इससे तलब किया गया था और अवाम ने गैर मामूली मज़ामत का मुजाहरा किया, लेकिन नेतन्याहू सियासी और स्ट्रैटेजिक हवाले से नाकाम रहे और अपने तय करदा किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सके। ये बयान नेतन्याहू दफ्तर के इस बयान के बाद सामने आए हैं, जिसमें कहा गया था कि इजराइल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी हमलों को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने के फैसले की हिमायत की है। ताहम नेतन्याहू दफ्तर ने वाज़ेह किया है कि यह 2 हफ्तों की जंगबंदी लेबनान पर लागू नहीं होती। मलेशियाई वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंगबंदी पर इसे एक मुस्बित पेशरफ्त करार दिया और हवाला देते हुए ईरान के एक मुजव्विदा 10 निकाती मनसूबाबंदी को, जिसे वाशिंगटन ने खुशायन करार दिया कि यह तजवीज़ न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया के लिए अमन और इस्तेकाम की बहाली की नवीद है। अनवर इब्राहिम ने जोर दिया कि कोई भी पायदार हल ईरान तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इराक, लेबनान और यमन में भी इस्तेकाम को शामिल करना होगा और गाजा में इंसानी बहरान के खात्मे का मुतालबा भी किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बेलौस और बहादुराना सिफारतकारी की तारीफ की और इस्लामाबाद के किरदार को उजागर किया।
अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने आज 4 शूबे को ईरान के साथ एक नाजुक जंग बंदी मुआहदे का खैर मुकदम किया और तेहरान पर जोर दिया कि वो नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात करें ताकि एक तवील उल मुद्दत मुआहदे तक पहुंचा जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स नहीं है जिन्हें बेवकूफ बनाया जा सके। अरब न्यूज के मुताबिक उन्होंने यह बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद दिया, जिसका ऐलान सदर ट्रंप की इस डेडलाइन से कुछ देर पहले किया गया, जिसमें कहा गया था कि या तो मुआहदा किया जाए या फिर तबाही का सामना किया जाए। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया कि जब तक बाकायदा शरायत तय नहीं हो जाते जंग खत्म नहीं हुई। जेडी वेंस ने हंगरी के दौरे के दौरान कहा कि ईरानी क़यादत अगर नेक नीयती के साथ हमारे साथ काम करने पर आमादा है तो मेरा ख्याल है कि हम एक मुआहदा कर सकते हैं। इजरायली फौज ने आज 4 शूबे के रोज कहा कि इसने लबनान में जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयां की है, जिनमें मुल्क भर में शहरी इलाकों में मौजूद तंजीम के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इदारे एएफपी ने लबनानी सरकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि इजराइल ने बैरूत पर मुतअद्दिद हमले किए, जिनमें दारुल-हुकूमत के कई इलाके खास तौर पर इसके जुनूबी मज़ाफ़ात शामिल हैं। एएफपी टीवी के बराह रास्त फुटेज में बैरूत और इसके नवाही इलाकों से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, जबकि एएफपी के सहाफ़ियों ने सड़कों पर खौफ व हरास के मनाजिर की इत्तला दी। एक लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने इस ताज़ा बमबारी को मुल्क में इजराइल के साथ तनाज़ा शुरू होने के बाद की सबसे शदीद कार्रवाई करार दिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने आज 4 शूबे को जुनूबी लबनान पर दोबारा हमले शुरू किया, जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसरार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। इजरायली फौज ने जुनूबी शहर सोर के करीब एक इमारत के लिए इनखला की वार्निंग भी जारी की। लेबनानी मुसल्लह गिरोह हिजबुल्लाह, जिसने 2 मार्च को इजराइल पर हमले करके लेबनान को मशरिक़ व सतह की जंग में शामिल किया, उन्होंने रात 1 बजे के बाद से किसी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की संगीन सूरत-ए-हाल से पूरी दुनिया वाकिफ है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। महंगाई आम आदमी की जान ले रही है। मईशत ज़बोहाल की शिकार है। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को भी अब यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपना कर्ज अदा कर सकता है या नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान की नाजुक मुआशी सूरत-ए-हाल एक बार फिर उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने 7 साल पुराने $3 अरब के कर्जे में तोसी से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात अब पाकिस्तान से अपनी रकम वापस करने का मुतालबा कर रहा है, इस खौफ से कि वो अपनी रकम खो सकता है। इस्लामाबाद इस अदायगी को मामूल की मालियाती लेन देन से तामीर कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के माली हालात अबतर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो यूएई को रकम वापस करने से कासिर है। पाकिस्तान की गहरी मुआशी इंतजामी खामियां और बैरूनी इमदाद पर हद से ज्यादा इन्हिसार इसके एक गले का कांटा बन गया है। दरहकीकत ये $3 बिलियन की अदायगी पाकिस्तान के इकनॉमी के ज़खायर का तकरीबन 18% है, जो मार्च के आखिर में सिर्फ $16 बिलियन पर था। यह रकम पाकिस्तान के 3 माह की दरामदात को पूरा करने के लिए बमुश्किल काफ़ी है। ऐसे वक्त में जब मुल्क पहले ही तेल की बढ़ती हुई कीमतों, मुसलसिल तिजारती खसारे और कमज़ोर सनती पैदावार से दो चार है, इतना बड़ा अखराज पाकिस्तान की माली हालत की कमजोरी को जाहिर करता है।